Let go. जय सच्चिदानंद। મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત, મારે ગાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થવું છે, દાદા જેવું મારે થવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમ બોલો. બરીજમાં નવ કલમ બોલો.
जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. બોલ. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી શાશ્વત વાણી, શાશ્વત વર્તન અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો ધર્મ કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાશ્વત વાણી, શાશ્વત વર્તન અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે आचार्यનો अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર, કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાય જાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ આગળના પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લિપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલા કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रतिमान जी। जय सच्चिदानंद। श्री मंत्र बोलाइए प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोके सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनम करो, तव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। Okay. Oral daily prayer. अनम्यूट करो। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि अपने हाथ को कभी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरे शरीर के साधन मुझे वैसे यानी कि पढ़ाने और सत्संग हमेशा साथ रहे। मैं पढ़ाने बिल्कुल सुंदर रहूं,
मैं तेरी सौगत का कुशल हमेशा दे रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग करेगी या छोटे व्यक्ति परम कृपा कर प्राप्त मन वचन का अनुभव और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार आपकी जीव मात्रा की सेवा के लिए करूँ। ये सबसे बड़ा मानवंदन है। मैं हमेशा हमें सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में चंचल मौन किया बनी रहेगी ताकि मैं दादा भगवान ऐसे परम उच्च की मानवी बनता हूँ। हे दादा भगवान मैं आगे अपने हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की बात हमेशा सुनने का संकल्प लेती हूँ और कभी भी उनके अहंकार के जवाब में नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस सम्मान दक्ष दक्ष study prayer. डेली प्रेयर। Study. हाँ। हे दादा भगवान मेरी पढ़ाई में तोड़ने में जो बाधा आते जंतरा आते जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का संकल्प होता हूँ। आप ऐसी कृपा करना से दूसरे उदाहरण जिससे Saksiva. सारा Saksiva. स्टडी प्रेयर या दादा वाली। Study. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा आते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर की आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे परम शक्ति आप मुझे देते हैं। जैसे Okay, Daksh. हे दादा भगवान हे दादा Hey, दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे बच्चे, दिल के हैं सच्चे दिल दिल के के हैं हैं सच्चे सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी है अच्छे। अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। Okay, sufficient prayer. Daksh. Apalago Dakshilagos Atmanadaga Aparmanand Dakshnamparadi Ishatnada Yellow Dakshi relative Ajay Sachidana. Saksiva. Saksiva. जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો એ દક્ષિણ જુદા છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો એ દક્ષિણ રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો એ દક્ષિણ ટેમ્પરરી। જય સच्चिदानंद। Very Sachin, very good. Okay, कल क्या दीपक दादा ने क्या बात किया था? कौन सी बातें की बात की होगी? किसको याद है, किसको नोट? दीपक जी मैं पद सीधी मोकलावेली किसको याद है? ओके खुशी। कल दीपक दादा ने ये बताया कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना टेंशन लेते हैं, सो हमें वो तीन ही चीज मेन टॉपिक क्या था? तीन वी आर ओनली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ। क्या? We are only and solely responsible for ourselves. That's number 1. सेकेंड, मम्मी पापा हमारे लिए कितना टेंशन लेते हैं। टेंशन और खुद का टेंशन मम्मी पापा को आप कितना देते हैं? तीसरा तीसरा HPPY। हैप्पीनेस। ओके ये तीन। ओके कैसा रहा आज तीनों में कैसा रहा आज दक्ष? आज का दिन अच्छा रहा। अच्छा या मैं आप हैप्पी थे ऑल डे? हाँ आपको तो स्कूल में तो कुछ
नॉट सेटिस्फैक्ट्री लिखा है। मम्मी को टेंशन दिया था, स्टडी किया था, हाँ किया था। मम्मी के पास किया, और नहीं, मम्मी मम्मी को किया पूछो, था। मम्मी को पूछो ऐसे। मम्मी पीछे बैठी है ना, पूछो क्या स्टडी में पास हुआ? नहीं। तो हाँ क्यों बोलते हैं आप? मम्मी को टेंशन दिया आज, ऐसे बोलो तो रंग। हाँ, मैंने मम्मी को टेंशन दिया था। और तीनों में जोड़ो ना जल्दी से आप। आर यू हैप्पी टुडे फॉर योर प्रोग्रेस? नो। नो, ओके। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ टुडे एंड टेंशन मम्मी को दिया, ओके। इतना अच्छी बात। आज मम्मी को टेंशन नहीं दिया था, हाउ कैन यू से दैट? मम्मी ने बोला। ओह, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इतना अच्छी बात। और दूसरा? तीन टॉपिक है। ए दादा क्या करेगा, आप सोचिए क्या? मम्मी ने ग्रेड दे दिया तो पास हो गया? ओके, हाँ। बोलो बोलो। Were you responsible for yourself today, everything? हाँ, वैसे आज तो मैंने सिर्फ वर्नारी स्टडी किया था, No. मैथ्स। So you are not happy today. Okay. वो मोनिका क्या, वो सब किधर चले गए? वो मम्मी से पूछ के आ रहे थे वो टेंशन दिया या नहीं। करिश्मा को मुल्ली मैंने बुलाया? नहीं, वो करिश्मा पूछने के लिए गई है मम्मी को। No. मैंने टेंशन हाँ पूछने गई, ओके। टेंशन दिया कि वेरी गुड। ओके, आप आपका बोलो। आज मैंने मम्मी को टेंशन दिया था काम के वक्त जब मैंने उनका काम नहीं किया, और आज सेटिस्फाइड नहीं थी, हैप्पी नहीं थी, क्योंकि आज स्टडीज में मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, प्रॉपरली नहीं किया, शेड्यूल बना, और आज मैं खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। करिश्मा, मम्मी ने क्या पास किया, क्या फेल किया? मम्मी ने कहा कि मैंने उनको टेंशन आज नहीं दिया। ओह क्या बात है, वेरी गुड। और आप हैप्पी है? और आज आज हैप्पी है? हाँ। सब कुछ हो गया। तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। आज पढ़ाई नहीं की हाँ दादा, आज पढ़ाई नहीं की, इसलिए खुश है। नहीं आपको नहीं नहीं। मोनिका, व्हाई यू टॉकिंग? हाँ, पंजाबी सीखा, बोलो जल्दी जल्दी। आज मैं मेरी आपको पढ़ाई अच्छी तरह से किया कि नहीं आज? क्या पढ़ाई अच्छी तरह से किया कि घर के आप आफ्टर कमिंग टू होम? मैंने स्कूल में अच्छे किया। नहीं किया, ओके। खुशी। मैंने आज मम्मी को टेंशन नहीं दिया, ऐसा मम्मी ने कहा था, और आज मैं हैप्पी थी क्योंकि आज क्लास में मैथ्स का टेस्ट था, तो उसमें मुझे 9 आउट ऑफ 10 ग्रेड आए थे, और मैं आज रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। मुझे आज तमिल सिंसियरली करना था, बट मेरा चित नहीं रहा, क्या नहीं यहाँ ठीक? चित भटकने लगा। क्यों? इधर? कप गोला में? आइसक्रीम में? नहीं, वो थोड़ा कोल्ड था, इसलिए सो जाऊं ऐसे करके चित भटक गया था थोड़ी हाँ देर। तो अभी प्रदीप दादा को पूछो कि चीज है तब भटकता है तो कैसे वापस लाने का स्ट्रेटजी। चलो प्रदीप दादा जी, आपने सुना सबका रिपोर्ट। तीन टॉपिक चल रहा है। आर यू हैप्पी? आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ? मम्मी को पापा को कितना टेंशन देते हैं आप? ठीक है, सिंसियरिटी में प्रॉब्लम हो जाता है।
प्रदीप दादा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मैं ये बच्चों को यही पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी गलती तो बता देते हो, वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपने जो जो भी मम्मी को टेंशन दिया, अगर जो कुछ भी गलती हो गई, तो वो गलती के हो जाने के बाद आपको अंदर में क्या फीलिंग रहता है? चलो एक एक बोलो मोनिका। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जो हो गया, वो तो संजोग के दबाव से हो गया, एक धक्का लगा और आदमी गिर गया, लेकिन फिर भी खड़ा होता है ना, गिर जाता है फिर भी वो खड़े होके चलता है। तो मैं आपको हाँ ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे गलती हो जाती है, वो आपको पता चल गया, तो फिर आप क्या करते हो उसके पीछे? वो गलती निकालने के लिए क्या करते हो, और सिर्फ जानते हो फिर बाद में छोड़ देते हो? वो आपको अंदर क्या फीलिंग्स आती है? बोलो क्योंकि देखो, मोनिका। मोनिका दादा बोलो। भगवान ने बताया कि ये सिद्धांत है, कोई भी गलती हमें दिखती है वो अच्छी चीज है, वो हमारा डेवलपमेंट है, वो हमारे अंदर ऐसा प्रकाश खुला हुआ है। लेकिन गलती पता चले तो फिर बाद में हमें उसको फिर से नहीं होवे उनके लिए क्या करना चाहिए, और गलती होने के बाद अपने को अंदर क्या फीलिंग्स आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो गलती जाएगी नहीं, प्रदीप दादा। कैसे जाएगी? प्रदीप बोलो। दादा। बोलो हाँ जी। अब हम पूछते हैं सबको कि ये गलती करते हैं तो क्या फीलिंग होता है। साक्षी बा। हाँ, वैसे अच्छा नहीं फील होता है। अच्छा नहीं फील होता है तो रिपीट क्यों होता है? ओरल। हाँ, हाँ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं तो रिपीट क्यों होता है? जी। दुख होता है थोड़ा। नहीं सुनाई देता है। दुख होता है। जरा जोर से बोलो। दुख होता है दुख अंदर होता से। है तो रिपीट क्यों होता है? करिश्मा। अब तो मिस्टेक नहीं करती है ना? करती हूँ। क्या होता है आपको? हंसी आती है? मोनिका। हाँ, मुझे दुख होता है कि मैंने वापस ये गलती की है। दुख होता है तो रिपीट क्यों होता है? मम्मी को टेंशन क्यों दिया? अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं किया? दक्ष। ज्यादा दुख होता है। दुख होता है तो मम्मी को आज टेंशन क्यों दिया? ओके। आपने सुना प्रदीप दादा हम लोग का रिस्पॉन्स। देखो, आप लोगों को अगर दुख होता है, वो बात बिल्कुल बराबर है, क्योंकि किसी को दुख देते हैं तो उसका रिएक्शन में दुख ही आता है। लेकिन हमें ये वीकनेस से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक हमें ये पता चलेगा कि ये वीकनेस है और ये वीकनेस से मुझे छूटना है, तभी उनका सॉल्यूशन आ सकता है। आपको दुख होता है, बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं करना है वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन अपने को सिस्टम से जाना पड़ेगा कि एक बार हमें पता चला कि ये चीज गलत है, ये मुझे दुख देता है, ये अच्छी चीज नहीं है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, वो आपने डिसाइड किया है, उसका रास्ता ढूंढा है आपने। तो दादा भगवान कहते हैं कि जो आदमी, जो इंसान अपनी कितनी भी गलती हो, लेकिन एक बार जो हार्टिली वो ठान लेता है कि अभी मुझे इस गलती से छूटना है, तो उनको अपने आप उनका रास्ता धीरे धीरे मिलता रहता है, और एक दिन उसका छुटकारा होता है। लेकिन जब तक हमें दुख होता है, लेकिन उसके पीछे
सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। जो आपको प्रतिक्रमण पता है ना, हम प्रातः विधि में बोलते हैं कि मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, बराबर। और नव कलम में क्या बोलते हैं, किसी को हम नहीं दुबाना है, किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अभाव तिरस्कार। वो जो गलतियां हैं होती है रेगुलरली, एक होती है, दूसरी नहीं होती है, तीसरी होती है, दूसरी अलग होती है। वो नव कलम में सभी गलतियां दिखाई हुई है और ये गलती से छूटने के लिए प्रार्थना है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि हम हमारे माँ बाप को दुख देने की क्या जरूरत है? हमारे पास और कोई रास्ता है? समझो कि आपको कुछ काम करने के लिए बोला, कोई जगह पे जाने के लिए मना कर दिया, अगर कोई चीज आपको लाने के लिए ना बोल दिया, कोई भी कारण हो, तो आपने उसके लिए सोचा कि वो ना बोल रहे हैं, अगर कुछ भी कह रहे थे, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसको कॉमन सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें गलतियों में से सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, तो यही रास्ता है। चाहे कैसा भी वाणी निकल गई, चाहे कैसा भी व्यवहार हो गया, लेकिन वो हमारे मन में होना चाहिए कि ये यही रास्ता होता है कि दूसरा कोई रास्ता होता है। आप लोगों को थिंकर है, डेवलप है, अगर डेवलप होना है तो दादा की ये हर कॉर्नर से बात समझने जैसी है। गलती हो गई, लेकिन अभी उनका वो गलती दोबारा नहीं हुए, उनके लिए क्या करना है? मैं प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारा जीवन दूसरों को दुख देने के लिए है क्या? हो जाता है, वो भगवान बोले वो अलग बात है, लेकिन अंदर में प्रायश्चित है? प्रायश्चित हम करते हैं। जो इंसान को दुख होता है वो हार्टिली प्रायश्चित करता है कि भगवान दूसरी बार मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, मुझे शक्ति दो। यही रास्ता है। हम शक्ति मांगेंगे, ज्ञानी ने जो बताया वो करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। आपको सॉल्यूशन लाना है कि जो हो रहा है उनको चलने देना है? ये क्या भी लगता है आपको? बच्चे प्रदीप दादा उन लोग को पूछेगा भी, सॉल्यूशन है? लाने का है कि नहीं लाने का, बोलो दक्ष, क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या कर, पोल्यूशन लाने उस चीज का, हम्म? सॉल्यूशन लाना उस चीज का। क्या करेंगे? सॉल्यूशन तो बताया प्रदीप दादा ने। साक्षी बा, सॉल्यूशन लाने का है। क्या सॉल्यूशन लाएंगे? देखो कल बताया था आपने कि मम्मी को एक चीज है आपको, राइट? मम्मी को मैं बताऊंगा स्टडी करके विच सब्जेक्ट, आज आपने बताया। ओके, तो वेरी गुड। ऐसे ट्रैक करने का कि क्या था कल, ओके। सौरभ, सॉल्यूशन क्या करेगा सॉल्यूशन? कल क्या प्रॉब्लम था आपका? स्टडी का प्रॉब्लम, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ हाँ, तो इसे बोलो ना, कैसे मेजर कैसे करता है इम्प्रूवमेंट? ये बाबा आवाज हाँ, आवाज नहीं आ रही है। मेजर कैसे किया कि कल से आज इम्प्रूवमेंट किया? मैंने कुछ, सोचा हाँ, हाँ कुछ बस मेजरमेंट, मेजरमेंट थोड़ा मांगता है। हाँ अभी एक मेजरमेंट लिखो, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे करने का, और रिपोर्ट करने का। मोनिका, व्हाट आर यू गोइंग टू डू?
मुझे देख स्टडीज में आपने कल बोला था स्टडी अच्छी नहीं होती, कल बोला था हाँ, मम्मी को टेंशन दो, तो दोनों तो कुछ करना मांगता है ना। हाँ, क्या हाँ, what you going to do? मैं मम्मी को टेंशन नहीं दूंगी और साथ ही कल से तो मैं पहले टेंशन क्यों देते हैं वो, तो उसका मैंने रूट कोज मांगता है तो ही जाएगा ना। Why you जो do that? जो वो काम देते हैं वो मैंने टाइम पर पूरा नहीं किया इसलिए। और Why you do that? Why you do that? मैं खुशी को कहकर भूल गई। So you find out why you do it and you don't have, बाद में दादा को बोलो कि ये नहीं करने। तो स्टडीज में तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, अच्छा नहीं करेगा तो क्या पढ़ाएगा। करिश्मा, आप क्या मिस्टेक करती है? अच्छी तरह से पढ़ती है, मोनिका को परेशान करती है, क्या मिस्टेक करती है आप? पढ़ती नहीं, हम्म? स्टडीज नहीं करती। स्टडी में तो अभी सोचो कैसे इम्प्रूव करेगा। खुशी, मेरा चित भटक जाता है स्टडी के नहीं टाइम। सुनाई देता है हमको। नहीं, मेरा चित पहले कल की बात बोला, कॉन्सेंट्रेट। आपने बोला था कि मम्मी पापा जो बोलेगा वो यू विल ओबे बाय दैट। ओके सर, हाँ हाँ, मैंने आज सारी बात मानी थी। ओके, आपको टेंशन नहीं है मम्मी पापा की। और अभी स्टडी में स्टडी में इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? मैथ में कैसा है आपका? 100 आउट ऑफ 100 आएगा कि नहीं? नहीं। हाउ हाउ मैं विल हाउ विल यू इम्प्रूव टू गेट 100, वो देखने का है। हाँ, क्या हाँ, लेकिन बताओ आप क्या करने वाले हो तो कल देखेगा ये क्या नहीं। इतना छोटे छोटे हम कर रहे, बड़ी बात नहीं करते, छोटे तो भी गलती हो जाएगा, नो प्रॉब्लम करती मैंने बोला। ओके, बट यू टू कीप ऑन इम्प्रूविंग डे बाय डे। एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएगा इम्प्रूव, तो यू डोंट फील बैड। ओके, इफ इफ यू लाइक विकास से आई शुड बी हैप्पी टुडे कि मम्मी को जो टेंशन नहीं दिया, पढ़ाई में अच्छा किया तो दे शुड बी हैप्पी, नहीं किया तो बोलेगा। ओके, ठीक है प्रदीप दादा। एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बार दादा भगवान ने आपदा पुत्रों को शिविर के लिए एक गांव जाने को बोला। सब आपदा पुत्र शिविर के लिए गए और एक व्यक्ति को, वो बड़े संत थे, उनके पास जाने का योग आया। वो संत पुरुष के साथ बैठ के बहुत सारी हुई, लेकिन इस संत पुरुष को आपदा पुत्रों के बातों बातों में उनको बहुत सारा दुख हुआ। और दुख हुआ वो बात हमने सब दादा भगवान को बताई कि दादा ऐसा ऐसा हुआ। तो दादा भगवान ने क्या बोला होगा? तो दादा भगवान ने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे माफी मांगने के लिए जाना पड़ेगा। और दादा भगवान का यही सबसे बात समझने जैसी है, चाहे हम कच्चे पड़ जाते हैं। दादा भगवान ने बताया किसी भी जीव को दुख देना वो अंदर बैठे हुए भगवान को दुख देना बराबर है। आपको दुख ही मिलेगा। और किसी भी जीव को सुख देने की भावना और सुख देना, वो भगवान को सुख देते हो तो आपको खुद को सुख ही मिलेगा। अभी हम सबको ये सोचना है कि गलती हो जाती है, किसी को जाने अनजाने में दुख हो जाता है, लेकिन उस समय वो हो जाने के बाद हमारे पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या पुरुषार्थ होना चाहिए,
कैसी समझ होनी चाहिए जिससे ये गलती धीरे धीरे हमारे में से निकल जाए। मैं आपको एक बताऊं कि अगर ये सर्दी का मौसम है, अगर किसी को सर्दी लग गई, बीमार हो गया, जुकाम हो गई, क्या हम दवाई नहीं करते? क्यों? हमें अनुभव होता है कि शरीर में दुखता है, चैन नहीं लगता है, सोने का अच्छा नहीं लगता है, खाने की मजा नहीं आती है, पढ़ाई में मजा नहीं आती है, हमारा पूरा जो स्फूर्ति है, आनंद है, सब चला जाता है। एक छोटी सी बीमारी के कारण हमें कितना सारा अनुभव होता है। तो हम छोटी छोटी बातों में, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको दुख देते हैं। अगर दुख हो जाता है तो हमें अंदर कुछ होता है, फीलिंग्स, और होना चाहिए। क्या लगता है आप लोग? मम्मी पापा हमारे लिए क्या करते हैं वो बात अभी अपने को नहीं करनी है, लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान को दुख देते हैं। किसी भी जीव को दुख देना क्या अच्छी चीज है? और दादा भगवान ने बताया, हो जाता है वो, हो गया, मिस हो गया, लेकिन अभी आप ऐसा डिसाइड करो कि दूसरी बार गलती करनी नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है। हम जितना भी किसी को दुख देंगे, जाने और अनजाने में, तो हमारे पास दुख के सिवा कुछ आने वाला नहीं है। हम सुख देंगे तो सुख ही आने वाला है। आप लोगों को जो पसंद है वो आप करना। अगर गलती हो जावे तो बाद में प्रायश्चित करने जैसा है, और फिर डिसाइड करने का दूसरी बार ऐसी गलती करनी नहीं है। बराबर है बच्चे आप लोग? लोग, हाँ, हम सब गाते हैं कि दादा नु गीत मारे गाऊ छे, वेरी गुड प्रेयर, बाय हार्ट भी गाया, बहुत अच्छा किया, और करने जैसा है। लेकिन दादा का गीत कौन सा है? दादा का ज्ञान कहाँ पर है? देखिए, डे टू डे लाइफ में हम कैसे जीते हैं, और दादा भगवान ने उस समय क्या सॉल्यूशन दिया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, वो पूरा 9 कलम में आ गया है। आपको अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, दादा का विज्ञान समझना है, आपको जगत कल्याण में निमित्त बनना है, आपको बहुत सारा प्रोग्रेस करना है, दादा जैसे एक पर्सनालिटी वाला इंसान बनना है, तो हमें दादा की बातों को समझना पड़ेगा। और वो बातों को समझने के बाद ही हमारे जीवन में धीरे धीरे ये एप्लीकेशन में आती मालूम जाएगी। ये पड़ा अप्लाई सबको? करने की बात पहली नहीं है, पहला हमें समझना है कि ये क्या चीज है। अंडरस्टैंड किया सब लोग तो ना? ओके, तो एक प्लीज सोचो थोड़ा, 5 मिनट, 2 minutes for you. यस। Make them smile. पीछे ये मैं बात बताना चाहूंगा, एक मिनट। आप सब लोगों को गलती तो करनी ही है ना? हाँ। गिर मर्जी से गिरते हैं कि गिर जाते हैं? हाँ, टोरल तो गिर मर्जी से गिरती है, फिर गिर एक्सपेक्ट जा करती है कि मम्मा आके मुझे उठाए। हाँ, बोलो ना, क्या हो गया? अनम्यूट करो। टोरल, जानबूझकर गिर जाती हो? अपना गिर जाता हाँ, अपना गिर जाता क्या हुआ? अपना गिर जाता समझ में नहीं आया, क्या अपने बताया? अपने गिर जाती है। अपने आप गिर जाते हो हम्म, कि अपनी मर्जी से गिरते हो? जानबूझकर गिरते हो कि गिर जाते हो? गिर जाता अरे बोलो ना, अब कई गिर कईयों में जाते हैं सुनाई दिया? कईयों गिर जाते हैं। गिर जाते हैं गिर गिर जाते हैं ना, तो जानबूझकर तो गिरना नहीं है, फिर भी गिर जाते हैं तो उठ के चलने लगना है।
तो उसमें मुंह क्यों चढ़ाते हो? हैं? बोलो ना। हमारी गलती आज, और दो दो तीन गलती आज समझ में आई ना। हाँ जो समझ में नहीं आई थी वो आज समझ में आई ना, पहचानने में आई ना। हाँ एक स्टोरी बताता हूँ कि दादा भगवान की जन्म जयंती थी। जन्म जयंती यानी हैप्पी बर्थडे करते हैं ना। दादा भगवान की बर्थडे सेलिब्रेशन थी। और रात को एक आप तो पुत्र ने दादा को बताया, दादा आज मैं बहुत दुखी हो गया। तो दादा ने पूछा क्यों दुखी हो गए? दादा आपके बारे में, आप तो पुत्रों के बारे में बहुत नेगेटिव विचार आए। तो दादा ने बताया तो मुझे अगर ऐसा होता है तो मैं 2 लड्डू ज्यादा खाता हूँ। बोले लेकिन कैसे खा सकता हूँ 2 लड्डू ज्यादा? बोले जो गलती अंदर थी आज वो बाहर आई तो मुझे समझ में आई ना कि ये गलती है मेरे में। तो गलती को जानकर क्या करोगे? उसको प्रतिक्रमण। मोटी करोगे कि उसका प्रतिक्रमण करोगे? प्रतिक्रमण। हाँ, तो खुश होना है। ये एक और 2 गलती मुझे आज समझ में आ गई, दादा मुझे शक्ति दो, अब ये गलती नहीं करनी है। तो मैंने एक एक कदम और भी क्या बोले, दादा के परम उत्कृष्ट मानवी की व्यक्तित्व के मानवी बनने के मार्ग में मैंने 2 कदम आगे बढ़ गया मैं। ऐसा नहीं हुआ? हाँ समझ में आया? हाँ एक बात समझना है, हम नई गलती नहीं करते, लेकिन जो गलती हो चुकी है अंदर पड़ी है ना, वो बाहर आती है। और जब बाहर आएगी तभी तुम्हें पता चलता है ना। बाहर हाँ। नहीं आएगी, अंदर अंदर आप देख सकते हैं? कोई नहीं दे नहीं। सकता। जब वो बाहर आती है, संजोग आता है, तब हमारी गलती बाहर आती है, तो उसको पकड़ लेना है। गले से पकड़ते हैं ना चोर को, बोलो ना, हाँ गले से नहीं पकड़ते वो। ऐसा अपनी हाँ। गलती को गले से पकड़ने का है, और प्रतिक्रमण करके आगे। 1-2 लड्डू ज्यादा खा लो, 1 रोटी ज्यादा खा लो। समझ में आया अभी? ये हाँ। हंसने की बात है कि मुंह चढ़ाने की बात है? हंस- हम्म, हाँ, हंसने। करिश्मा हंसती लेकिन क्यों नहीं है? मुंह चढ़े हुए हैं। ये करिश्मा तब की बात हो जैसे कितना सारा दुनिया का दुख अपने सर पर लेके खड़ी है, ऐसा है। हाँ। ओके चलो, जय सच्चिदानंद। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी स्माइलिंग। ओके, जय कि नहीं, सच्चिदानंद। हाँ करिश्मा को नहीं आई हाँ समझ में। ये हाँ। किसको देखती रहती है उधर? हाँ, उधर कौन है? उधर कौन है? उधर ऐसा करके क्या देखती रहती है ऐसा? मम्मी मम्मी लगती है। मम्मी है? नहीं फिर वो आपकी वो बड़ी दीदी कहाँ गई? खुशी बाहर दीदी है, भाग गई? नहीं हाँ। बाहर है, मम्मी के साथ है। हाँ, लेकिन अभी कैसे चली गई? अभी तो सत्संग पूरा नहीं हुआ तो। नहीं वो हाँ, ज्यादा इसलिए। अच्छा कोल्ड ज्यादा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जैसे समझ में आ गया। ए टोरल बेटे, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, तो ऐसा है, हमें गोल्ड मेडल लेना है ना दादा का। हाँ। तो अरे ये सब लोग क्यों नहीं बोलते? मोनिका तो को चाहिए ही नहीं गोल्ड मेडल, वो तो वो पत्थर का मेडल चलेगा उसको। नहीं हाँ, ऐसा है, गोल्ड मेडल लेना है तो एवरी डे आपको एक एक मिस्टेक्स पार करना है। और जितनी मिस्टेक हमने पार की उतना हम दादा के गोल के नजदीक आ गए। तो फिर खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? खुश होना चाहिए। हैं? हाँ, लेकिन खुश। ये लोग रो देते हैं मुंह चढ़ा के, अभी भी क्यों बैठे हैं? किताब की बात अभी लगती है रोएगी, अभी लगता है। हाँ, ये डोरल, हाँ समझ में आया? हाँ
तो नेक्स्ट डे अब जब हम जागेंगे तो मोर एनर्जी से जागेंगे, ज्यादा ताकत से जागेंगे कि मैंने कल 2 गलती देख ली और उसका मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, अब मैं और 2 कदम आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है? हाँ भी दादा भगवान ने तो ऐसा बताया, तो हमें तो दादा भगवान के बताया ही समझ से ही चलना है ना। हाँ हाँ समझ गए सब? टोरल समझे कि नहीं? हाँ हाँ छोटी क्या बोलती है? आवाज नहीं आता आपका। हाँ समझ गई। समझ गई। चाची बात समझ गई। हाँ चलो ओके अच्छा है। ये दीपिका जी, बड़े थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट या डोंट एंड फाइट, कीप फाइटिंग टिल द एंड। बी किससे हैप्पी, फाइट करने का है? बी स्माइलिंग, बी किससे हैप्पी, फाइट करने बी का है? लेकिन स्माइलिंग। लेकिन फाइट किससे करने का है? अपने से। किससे? छोटी से फाइट करने का है, मम्मा से फाइट करने का है, डैडी से फाइट करने का है, किससे फाइट करने का है? अपनी गलतियों से। समझ में आया? और गलती अंदर है, बाहर नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।